अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। Okay, Devdas Balika ji, please take over. Unmute. Unmute, please. Unmute. Please unmute yourself. And start talking again. Yeah. Okay. Sorry, I couldn't understand it. Okay. Om. 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 Vakatunda Mahakarya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Karume Deva Sarvakarya Yashu Sarva. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna to all. On behalf of Siddhivinayak Bhajan Group, I extend my warmest welcome to all of you. Guruji first. His Grace Vishwarupa Prabhu, I'll be addressing as Guruji henceforth. Before I welcome you once again, I'd like to talk few words about Siddhivinayak Bhajan Group. Siddhivinayak Bhajan Group is from Lodha Firenja Society in Goregaon East, and we have got a beautiful Ganesha temple in our society, and we started our bhajan program on Akshaya Tritiya day 2 years back. And by his grace, today we are able to conduct every Tuesday bhajans at the temple regularly without much break, except for some COVID period, wherein we even conducted virtual bhajans. And to add one more things, Siddhivinayaka Bhajan Group consists of, or we are having very good talent of bhajan singers, ladies, gents, even children, and hats off to the parents for teaching them the bhajan, and they sing so nicely.
and we are very proud of them. Now, coming back to Guruji, first of all, his real name is Vivekananda Shanbag. He is a GSV Brahmin, Konkani speaking, married to a Dasi. He has got 2 children. About his graduation, he is MBBS, and since we have already circulated his details, I don't want to go too much into details except for few salient points. मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश से बात करता हूँ, लेकिन प्रवचन तो हिंदी इंग्लिश में ही होगा क्योंकि सबको प्रवचन अंडरस्टैंड हो जाए. Coming back to Guruji, our friendship started somewhere in 1996 in Saudi Arabia, when we came to know that he has joined as a doctor in a famous hospital there in Bahrain, in Saudi Arabia, Dammam. He used to tell us about ISKCON philosophy, and one great point is, instead of we inviting him for pravachan, he used to invite us to his house for his pravachan, and he used to give such a nice sattvic prasad. I think we still remember those nice days we spent with him. Regarding his other qualifications, I don't want to go in detail, but he is the present director of Bhaktivedanta Hospital, and he is conducting eye camps, and he is doing yatras also. The yatras which I joined in the recent past was one to Puri, Jagannath, and the second is Barsana, Vrindavan. During his yatras, they are the physical yatras, not the virtual yatras which he is conducting nowadays due to COVID. He takes us to each and every important places and narrates the history of those places so nicely that it's a real good thing to hear him. And I hope you will be enjoying his pravachan on basics of spiritual life, which is very relevant to the present materialistic world. Beside leading a spiritual life, it's very difficult to have satsang nowadays. And this is a great opportunity for all of us to listen to him. May I now request Guruji to start his pravachan, please. Hare Krishna. Thank you for your loving and affectionate introduction. Myself and मेरा और देवदास बालिका जी और गोपाल भट्ट जी, इनका अभी 25 साल से, हमारा 26 साल से परिचय है, जब हम लोग सऊदी अरेबिया में साथ में थे. तो आप सब लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ. धन्यवाद है आपका कि आपने मुझे आपके बीच में बुलाया. और जैसे देवदास जी बालिका ने कहा कि सत्संग बहुत दुर्लभ वस्तु है. आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. अभी आप सब जानते हैं कि हम लोग कोरोना के महामारी में कैसे फंसे हुए हैं. न चाहते हुए भी हमारे ऊपर वो हावी हो रहा है. एक बार नहीं, दोबारा अभी हावी हो रहा है. तो सबसे पहली बात जो है, बेसिक जो आध्यात्मिक जीवन का बेसिक पॉइंट है, वो है पदम पदम यत पदम नतेषाम. पदम पदम यत पदम नतेषाम, यानी हर कदम पर इस विश्व में संकट है. हर मनुष्य के लिए इस विश्व में हर कदम पर संकट है. किस कदम पर संकट आएगा
ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन आएगा जरूर। और किस समय बीमारी आएगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन बीमारी आएगी जरूर। और किस समय बुढ़ापा आएगा, किसी के लिए जल्दी आएगा, किसी के लिए बाद में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और आखिर में मृत्यु कब आएगा पता नहीं है, लेकिन सबको मृत्यु आएगी। हाँ? ये जो चार चीजें हैं ये बहुत मूलभूत अंडरस्टैंडिंग है। These are the most important basic understanding of our life in the material world. जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। और ये चारों चीजें दुख देने वाली है। जन्म होता है तो हम लोग रोते रोते बाहर आते हैं। दुनिया ताली बजाती है, पेड़े बांटती है, और हम रोते रहते हैं। और जब भी बीमार होते हैं तो हमको कष्ट होता है। बुढ़ापे का कष्ट तो कहने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापा एक अलग बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम लोग अलग चर्चा कर सकते हैं, कितना वो कष्ट और दुख और पीड़ाओं का भंडार है। और मृत्यु एक ऐसी भयंकर घटना है। अभी कल ही मेरे भांजे के ससुर जी का भक्ति वेदांत अस्पताल में कोविड के वजह से मृत्यु हो गई उनकी। तो 3 बार आए थे, तब भी सीरियस कंडीशन में थे, लेकिन बच गए चमत्कारिक तरीके से। लेकिन कोविड का अटैक हुआ तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर होके कल उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से इस विश्व में ये चार चीजें जो हैं, उसके अलावा और 3 चीजें भी हैं जो बहुत मूलभूत है। उसको कहते हैं त्रिविध ताप। इट इज सेड इन इंग्लिश दैट थ्री फोल्ड मिजरीज। कृष्ण ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ कृष्ण स्टोरी समझनी भगवत गीता છે તને પાઠ કરતા નહીં તક રजिस्टर करता मैं। सो एक प्रकार का ताप है जो आदि दैविक ताप, यानी कभी तूफान आएगा, कभी आंधी आएगी, कभी सुनामी आएगा, कभी भूकंप होगा। देवताओं की तरफ से ये कष्ट होते हैं, उसको कहते हैं आदि दैविक ताप। दूसरे प्रकार का ताप है जो अन्य जीवों के द्वारा होता है, यानी आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश का कहना यह है कि भूत यानी जीव, तो अन्य जीवों के द्वारा जो कष्ट होता है, मनुष्यों के द्वारा, कुत्तों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, पंछियों के द्वारा, कीटकों के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, किसी भी अन्य जीव से हमको कष्ट हो सकता है। अभी हम सब लोग वायरस के द्वारा होने वाले कष्ट को अनुभव कर रहे हैं, ये भी आदि भौतिक क्लेश है। और तीसरा एक अद्भुत अनोखा क्लेश है। द थर्ड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लेश, वो है आध्यात्मिक क्लेश। खुद ने खुद को दिया हुआ क्लेश। आप लोग सोचेंगे अरे मैं तो अपने आप को क्लेश कैसे दूंगा? जो शराब पीता है वो अपने आप को क्लेश दे रहा है ना, सिगरेट पीता है वो अपने आप को क्लेश दे रहा है। 12th का एग्जाम है और बच्चा भटक रहा है, यहाँ वहाँ पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो अपने आप को क्लेश दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो कुछ ऐसे क्लेश होते हैं जो खुद लापरवाही से या पाप प्रवृत्ति से हम अपने आप को क्लेश देते हैं। अपना ही, हम ही अपने क्लेश का कारण है। हमने कुछ गलत बोल दिया किसी को तो झगड़ा होके मारामारी हो गई, हमारा सर फूट गया। तो हम सोचते हैं अरे अगर मैं गलत नहीं बोलता तो बच जाता, इतना कष्ट बचता। तो 7 चीजें हो गई ना, 7 चीजें। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, और आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। ये 7 चीजों से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति हो, या कुत्ता बिल्ली हो, या जानवर हो, या पंछी हो। ये 7 प्रकार के क्लेश सबको लागू है, चाहे आप धनवान हो, पढ़े लिखे हो, गरीब हो या अनपढ़ हो। और ये मान लेना कि ये सत्य है, इसको समझना, इसको रियलाइज करना, ये आध्यात्मिक जीवन का पहला स्टेप है। अगर आपको लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं, तो एक बड़ी गलतफहमी है। आपको अगर ये पता है, खुश रहना एक अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग इज गुड टू बी हैप्पी, बट टू नो that we are suffering in this material world
is the first step in spiritual life. जिस व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि मैं इस दुनिया में कष्ट भोग रहा हूं, मुझे नहीं भोगना है, मुझे नहीं बुढ़ा होना है, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं रोग होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो मेरे लिए जो नापसंद चीज है वो यहां पर हो रही है। तो ये जिसको समझ में आता है वो ही कोशिश करेगा यहां से बाहर निकलने के लिए, और वही कोशिश करेगा समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर मेरे न चाहते हुए ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है जो मुझे पसंद नहीं है। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का देहांत हो रहा है, मुझे पसंद नहीं है लेकिन हो रहा है। मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, मुझे नहीं पसंद है लेकिन हो रही है। मुझे लगता नहीं कि मैं बूढ़ा हो जाऊं लेकिन मैं बूढ़ा हो रहा हूं। नहीं होना है मुझे बूढ़ा, मुझे हमेशा 16 साल के युवा अवस्था में रहना है, लेकिन मैं समय के अनोखे प्रभाव से धीरे धीरे बुढ़ा होते जा रहा हूं, और वो बुढ़ापे का अनुभव भी कर रहा हूं कि कितना कष्टमय है। पहले मैं दौड़ता था, अभी मैं धीरे धीरे चलता हूं। तो सेकंड स्टेप, जब हमको पता चलता है कि दुख हो रहा है, तो प्रश्न उठता है वाई एम आई सफरिंग, वाई आर वी सफरिंग। तो उसका उत्तर स्पिरिचुअल लाइफ में मिलता है कि क्योंकि हम आत्मा है और हम शरीर में बद्ध हो गए हैं। बिकॉज वी आर स्पिरिट सोल एंड बिकॉज वी आर एंटैंगल्ड इन द बॉडी, वी आर सफरिंग। स्पिरिट सोल इज सच्चिद आनंद। सत्य यानी इटर्नल, चिरंतन, चिरजीवी। चित यानी पूर्ण ज्ञानी, और आनंद यानी आनंद, आनंदमय। आत्मा का स्वरूप है शाश्वत, ज्ञानपूर्ण, आनंदपूर्ण अस्तित्व। और जिस शरीर में हम लोग बैठे हुए हैं, अभी जी रहे हैं जीवन, वो शरीर का स्वभाव क्या है? वो शरीर नश्वर है, चिरंतन नहीं है। वो शरीर अज्ञान का नेटवर्क है। शरीर अविद्या जाल, या अज्ञान का नेटवर्क है। ये हमें, अगर आंखों के सामने ऐसा उंगली रखेंगे ना, तो आप सूरज को भी ढक सकते हैं, चांद को भी ढक सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका अंगूठा चांद से बड़ा है। अगले कमरे में कौन हमारे लिए क्या बोल रहा है आपको समझ में नहीं आता है। ये कान का लिमिटेशन है। इस प्रकार से हमारा शरीर जो है ना, वो हमें मोह में डालता है, अज्ञान में डालता है, और ये शरीर दुख का कारण है। इस शरीर में शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहेकाल, जीवे फले विषय सागरी तार मध्य जिह्वाती। यानी ये जिह्वा को अन्न चाहिए, और अन्न के लिए पूरी दुनिया लड़ रही है, पूरी दुनिया में संघर्ष हो रहा है, मुझे अधिक कि तुम्हें अधिक। तो शरीर का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है। द नेचर ऑफ द बॉडी इज एग्जैक्टली अपोजिट द नेचर ऑफ द सोल। इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि हम ये शरीर में आए कैसे? हमारी आत्मा अगर आनंदमय है, तो हमारी आत्मा इस शरीर में आई कैसे जन्म लेने के लिए, बुढ़ा होने के लिए, बीमारी होने के लिए? तो हम सब लोग भगवान के अंश हैं, और भगवान के साथ थे हम सब लोग। लेकिन भगवान का साथ छोड़कर जब हमने इंडिपेंडेंट जीवन जीना चाहा, when we left the association of the Lord and we wanted to live independently of the Lord, free life, independent of Lord and his rules and regulations. So उस समय भगवान हमें किसी बात का फोर्स नहीं करते। भगवान कभी कहते नहीं कि ऐसा करो वैसा करो। लेकिन भगवान के धाम के कुछ नियम हैं और भौतिक दुनिया अलग है। तो जब भगवान को छोड़कर इस दुनिया में भगवान को छोड़कर उनसे स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, तो भगवान ने ये दुनिया बनाई हमारे लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो सबसे पहला जो गलती है वो भगवान को छोड़ना। उसके वजह से हमारा इस दुनिया में पतन हुआ है, और इस दुनिया में पतन होते ही हमको ये शरीर धारण करना पड़ रहा है। भगवान के धाम में दिव्य शरीर होता है जो बुढ़ा नहीं होता, बीमार नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। वो शरीर छोड़कर जब हम दुनिया में आते हैं, तो ऐसा शरीर धारण करना पड़ता है जो बीमार भी होता है, बुढ़ा भी होता है, मर भी जाता है, नष्ट भी होता है।
तो ये हमारे दुख का मूल कारण है कि हमने इस शरीर में आश्रय लिया है। अभी अगर हमको समझ में आया है, कह रहे मैं जेल में कैसे आ गया? अरे मैं शहर में था, लेकिन वहां पर कुछ गुनाह किया मैंने, तो पुलिस ने पकड़ा और जेल में डाल दिया, और अभी मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। और मुझे समझ में आ रहा है कि पत्थर तोड़ने से बड़ा कष्ट होता है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। सूखी रोटी खाकर, हाँ, रोटी और अचार खाकर मुझे पुराना रोटी और नहीं खाना है, मुझे बाहर निकलना है। तो आप जेलर से पूछते हो कि मुझे बाहर कैसे निकलना है, तो जेलर कहेगा आपको 6 महीने की सजा है, आप अच्छे से रहोगे, नियम से रहोगे, तो मैं आपके लिए डिस्काउंट के लिए अप्लाई करूंगा, 6 महीने का 4 महीना कर दूंगा और सर्टिफिकेट दूंगा कि ये वेल बिहेव्ड प्रिजनर, तो आपको रिलीज कर दूंगा, फिर आप वापस शहर में रह सकते हो, और शहर में फिर दोबारा गुनाह मत करना, ताकि दोबारा आप जेल में नहीं आएंगे। तो उस तरह से जब हमको समझ में आता है कि हम लोग इस शरीर के कैद में फंसे हुए हैं, लगता तो फ्री है, हम लोग एवरीवेयर वी आर फ्री, बट हम लोग सब लोग अपने कर्मों के फल से बंधे हुए हैं। कर्मों का फल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, और हम लोग चॉइस नहीं कर सकते हैं। अच्छा फल आएगा तो भी आपको चॉइस नहीं है, आपको उसको भोगना पड़ेगा, और बुरा फल आएगा तो भी आपको भोगना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस कि अभी मुझे ये चाहिए तो आप गारंटी नहीं आपको वही मिलेगा। जो आपके कर्मों में लिखा है, जो आपने कर्म किए हैं, उसके फल के अनुसार जो विधाता ने अरेंजमेंट किया है वही मिलेगा आपको। तो एक तरह से हम फ्री हैं, एक तरह से पूर्णता बंधे हुए हैं, पूर्णबद्ध अवस्था में हम लोग हैं। तो फिर अभी बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ यानी हाउ टू गेट आउट। एक प्रिजनर के लिए बुद्धिमानी क्या हो सकती है कि प्रिजन के बाहर कैसे निकलूं, और एक प्रिजनर के लिए मूर्खता क्या हो सकती है कि प्रिजन में मुझे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट कहाँ मिलेगी, प्रिजन में टेलीविजन कैसा मिलेगा, प्रिजन में 5 स्टार होटल का खाना आएगा क्या, मोबाइल यूज करने को मिलेगा क्या, सेपरेट अंडा सेल मिलेगा क्या रहने के लिए, एयर कंडीशन। तो जेल में रहकर जेल में संतुष्ट और आनंदी होने का प्रयास करना यह मूर्खता है। जेल में रहते हुए जेल से बाहर निकलने का प्रयास करना यह बुद्धिमानी है। टू ट्राई टू गेट आउट ऑफ जेल इज इंटेलिजेंस, टू लिव कंफर्टेबली इन जेल इज फुलिशनेस। तो जब ये प्रश्न मन में उठता है कि आई एम बाउंड हियर, आई वॉन्ट टू गेट फ्री, मुझे यहां से मुक्त होना है, तो तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। ये सब जानकारी कहाँ होती है कि मुझे दुख हो रहा है, मैं बद्ध अवस्था में हूँ, आई एम सफरिंग ओवर हियर, ये सब कहाँ पता चलता है? ये सत्संग में ही पता चलता है। दुनिया तो कैसे कहती है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग गुड, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, वेरी नाइस, ये सब लोग फोन पे कहते हैं। जब मिलते तभी कहते हैं हाउ डू यू डू, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, हाउ इज लाइफ इन सऊदी, हाउ इज लाइफ इन अमेरिका, हाउ इज लाइफ इन मुंबई, वंडरफुल, हाउ आर यू डूइंग, फाइन। पर बोलते नहीं कि मैं परेशान हूँ लॉकडाउन में, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, सब्जी नहीं मिल रही है, सब आवागमन बंद हो गया है, रोड खाली हो गए हैं, धंधा चौपट हो रहा है, ये कोई कहेगा नहीं। जब पूछेंगे कैसे हो, अच्छा हूं, दिस इज इल्यूजन। बट सत्संग में आएंगे तो सत्संग में जो बोलने वाले हैं वो अब आपको हमेशा सत्य बताएंगे कि ये विश्व जो है वो दुख से भरा हुआ है। माम उपेत्यतु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये विश्व जो है ये मैंने बनाया है, जिसमें आप रह रहे हो, ये दुख का आलयम और अशाश्वतम दोनों है। ये दुखों का आलय यानी घर है, दुखों का घर, और अशाश्वत भी है, आज है तो कल नहीं है, या तो आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। आज हम लोग युवा अवस्था में रहेंगे तो कल बूढ़े हो जाएंगे, हम सब लोग इसको जानते हैं। तो सत्संगति में हमको ये पता चलता है कि सत्य क्या है। सत्य का परिचय सत्संग में होता है। द ट्रूथ इज नोन ओनली इन द एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल। सत्संगति में ही सत्य का परिचय होता है। सत्य क्या है? सत्य यह है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान के हैं, और भगवान के साथ रहना हमारा स्थायी भाव है। इट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर टू बी विद द लॉर्ड, टू सर्व द लॉर्ड एंड टू बी हैप्पी इन सर्विस टू द लॉर्ड। ये सत्य है। और ये सत्य क्या है कि ये विश्व में सुख नहीं है, ये विश्व दुख से भरा हुआ है। ये विश्व वैसा ही है जैसे हम
करेले के पेड़ पर अगर आम को ढूंढने जाएंगे तो आपको करेले के पेड़ पर कभी भी आम नहीं मिलेगा। राइट में भी नहीं मिलेगा, लेफ्ट में भी नहीं मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा, पीछे भी नहीं मिलेगा। आम अगर चाहिए तो वो आम के पेड़ पर मिलेगा, और आम के पेड़ पर राइट, लेफ्ट, सेंटर, अबव एंड बिलो, बिहाइंड एंड फ्रंट, सब जगह आम मिलेगा। तो अभी हम लोग भौतिक दुनिया में सुखी होने का प्रयास करने का मतलब है कि करेले के पेड़ पर आम ढूंढना। तो सत्संग हमारा सबसे पहला सेवियर है। सत्संग इज आवर फर्स्ट सेवियर। जिस व्यक्ति को इस मनुष्य जीवन में सत्संग प्राप्त होता है वो सबसे भाग्यवान जीव है, इज अ वेरी फॉर्चुनेट सोल। क्योंकि मनुष्य जीवन वैसे ही दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन में एक परम दुर्लभ चीज है, वो है संतों का संग। और वो संतों का संग मनुष्य जीवन में पिछले जन्मों के पुण्य से मिलता है, भाग्य से मिलता है। और हर एक व्यक्ति के लिए जन्म लेने के बाद मनुष्य के लिए भगवान सत्संग की व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम लोग सत्संग को लेते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये हमारे हाथ में है। अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो या गंभीरता से ले सकते हो। यू कैन रिजेक्ट मी व्हाट आई एम स्पीकिंग, और यू कैन टेक मी सीरियसली एंड फॉलो इन योर लाइफ। दैट इज योर चॉइस। सो लाइक दैट भगवान हमारे लिए सत्संग की व्यवस्था करते ही हैं हर मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन इस जन्म मृत्यु के श्रृंखला से बाहर निकलने का सुनहरा मौका है। The human life is the golden opportunity for the soul to get out of this bondage of the body of birth and death, repeated birth and death. तो सत्संग में हम क्या सीखते हैं? अधौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। श्रद्धा से हम जब सत्संग सुनते हैं तो क्या सीखते हैं? भजन क्रिया सीखते हैं। अधौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो भजन क्रिया का मतलब क्या होता है? हमारे आज के लोकल लैंग्वेज में अगर समझना चाहेंगे आप, तो भजन क्रिया है ए, बी, सी और डी। टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, ए इज एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल, जिसको मैंने पहले सत्संग कहा था, उसको आप ए कह सकते हैं। ए से सब कुछ शुरू होता है। अगर ए नहीं है तो आगे का कुछ भी नहीं है। ए नहीं है तो बी भी नहीं है, और सी भी नहीं है, और डी भी नहीं है। तो ए से सब शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत करने के बाद ए को छोड़ना नहीं है, ए को बराबर बनाए रखना है। यू कैन नॉट स्टार्ट विद ए एंड देन गिव अप ए। यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप डूइंग ए। दैट इज एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल, एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअली रियलाइज्ड पीपल, और स्पिरिचुअली रियलाइज्ड सोल्स, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है। जरूरी नहीं कि वो सन्यासी ही हो, ब्रह्मचारी हो, वो गृहस्थ भी हो सकते हैं, ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, सन्यासी भी हो सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक साक्षात्कार ये केवल सन्यासियों का या ब्रह्मचारियों का अधिकार नहीं है। जो जो जीव आत्मा है और मनुष्य जीवन में आया है, उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार करने का अधिकार है, क्योंकि उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्य का शरीर ऐसा एकमेव शरीर है जिसमें आध्यात्मिक साक्षात्कार हो सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त हो सकता है। कुत्ता बिल्ली के शरीर में हम स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। We cannot achieve spiritual realization in animal or bird or insect body. The facility of spiritual realization is only possible in human life, human body. That is why this human body, the human machine, is extremely important vehicle for us to know who we are, who God is, what is our relationship with God. And once we know the relationship, how to realize it, how to know it, how to establish it, how to connect again. तो मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। मैं भगवान का अंश हूं और भगवान मेरे पिता है, मैं उनका बालक हूं। और मेरा उनका रिश्ता क्या है, ये हम सत्संग में सीखते हैं। मेरा उनका रिश्ता है कि वो स्वामी है, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका अंश हूं, मैं उनका ही हूं। आई बिलोंग टू हिम। तो रीजन क्या है हमारे सफरिंग का? बिकॉज वी हैव लॉस्ट कनेक्शन, वी हैव लॉस्ट relations with the Lord. We have got disconnected from the Lord. We are disunited from the Lord. Now we are united in the material world, with the material world, with the material energy.
And that's why the material energy called Mahamaya is making us suffer repeatedly from birth, old age, disease, death, adhyatmic, adibhautik, adidaivik, klesha. So how to release ourselves from the bondage? तो वी लर्न इन सत्संग, हम लोग सत्संग में सीखते हैं कि सबसे पहले ए यानी एसोसिएशन के बाद में आता है बी, वो होता है बुक्स। बुक्स यानी ग्रंथ, स्पिरिचुअल लिटरेचर। हमारा धर्म हिंदू धर्म है और बाकी भी धर्म है। हर एक धर्म का अपना एक श्रेष्ठ शास्त्र है, प्रामाणिक शास्त्र है। तो हमारा प्रामाणिक शास्त्र क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, द हाईएस्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, which is accepted by each and every religion and spiritual path people in life in this world. So literature, spiritual literature, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Isho Upanishad, Chaitanya Charitamrita, Garga Samhita, Bhakti Rasamrita Sindhu, Upadeshamrita. There are so many spiritual literatures, Upanishads, Puranas and Bhagavad Gita. तो रेगुलरली इसका पढ़ाई करना जरूरी है कि क्योंकि इनमें वो साइंस दिया हुआ है जो हमारे जीवन से निगडित है। देखो हम लोग अभी मैं डॉक्टर हूँ, मैंने मेडिसिन पढ़ा है, सर्जरी पढ़ा है, गायनेकोलॉजी पढ़ा है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, ये सब कुछ मैंने पढ़ा है। वो हमारा मेडिकल स्क्रिप्चर है, उसको पढ़े बिना मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टरी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आपके पास आऊंगा और मैं कहूंगा कि मैं डॉक्टर हूं, तो मेरी डिग्री देखेंगे पहले आप। और डिग्री कब मिलती है? जब ये किताबें पढ़ेंगे और वो किताबें को आत्मसात करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर एग्जाम देंगे, पास होंगे, तो मुझे एमबीबीएस डिग्री मिलेगी, एमडी की डिग्री मिलेगी। फिर मैं आपके ऊपर प्रैक्टिस कर सकता हूँ, आप मेरे पास पेशेंट बन के आ सकते हैं। लेकिन मेरा बेसिस क्या है? बुक्स आर द बेसिस। माई नॉलेज इज बेस्ड ऑन माई मेडिकल लिटरेचर। तो वैसे ही आत्मा के विषय में नॉलेज इज बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअल बुक्स। बुक्स आर द बेसिस फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इन ग्रंथों का परिचय सत्संग में होता है। अरे पहले तो पता नहीं था, अभी पता चला कि भगवत गीता भी कोई ग्रंथ है जिसमें आत्मा का ज्ञान दिया हुआ है, आत्मा का पूर्ण वर्णन दिया हुआ है, जिसमें कर्मों का भी वर्णन दिया हुआ है, जिसमें ज्ञान का वर्णन दिया है, जिसमें संन्यास विरक्ति का भी वर्णन दिया है, जिसमें कर्म और कर्म फल का भी वर्णन दिया है, जिसमें कर्म मुक्ति का भी वर्णन दिया है, कैसे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, अकर्म क्या है, ये सबका भगवत गीता में वर्णन दिया है। 5 विषयों का भगवत गीता में चर्चा दी है। एक है आत्मा, दूसरा है ईश्वर, तीसरा है कर्म, चौथा है काल और पांचवा है ईश्वर के विषय में जो चीजें हैं वो। ये 5 वस्तु का ज्ञान भगवत गीता में पूर्णता दिया हुआ है, डिस्क्राइबिंग इन डिटेल। ये हो गया बी। आई होप यू आर राइटिंग। ए इज एसोसिएशन, बी इज बुक्स एंड सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम ये पढ़ते हैं तो क्या करते हैं उसके बाद में? सी यानी चैंटिंग, हम भगवान के नाम का जप करते हैं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नस्त्यैव 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 गतिर् अन्यथा। कलयुग में अगर आत्मा को मुक्ति करने का कोई साधन है तो वो है भगवान के नाम का जप। यज्ञाय संकीर्तनाय प्रायै यजन्तैहि सुमेधसः। बुद्धिमान लोग कलयुग में आत्मा की मुक्ति के लिए भगवान के नाम का जप और भगवान के नाम का कीर्तन, इसका सहारा लेते हैं। यजंती ही सुमेधसः। सुमेधसः मतलब जो बुद्धिमान जीव है, सुमेधा जिनकी मेधा बहुत ही ज्यादा है, सुमेधा यानी बहुत अधिक मेधा है। तो वो सुमेधा जो बुद्धिमान लोग हैं वो सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद में उसका सार के रूप में ये समझते हैं कि द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, टू गेट फ्रीडम, is to chant the holy name of the Lord. कलयुग केवल नाम आधारा, हरे नाम एव केवलम। तो तीसरा स्टेप है सी यानी चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। अभी कौन सा नाम लिया जाए? तो जो भी भगवान का नाम है वो हम ले सकते हैं। भगवान के नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्रार्पिता न नियमिता न स्मरणे न कालः।
इतने भगवान के अनंत नाम हैं, उन्होंने अपनी सारी शक्ति इस नामों में अर्पण कर दी है। इन नामों के जप में कोई कठोर नियम भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको जप सकता है। बच्चा जप सकता है, बूढ़ा जप सकता है, जवान जप सकता है, औरत जप सकती है, आदमी जप सकता है, पढ़ा लिखा जप कर सकता है, अनपढ़ जप कर सकता है, गरीब जप कर सकता है और धनवान भी कर सकता है। और दिखने में सुंदर है वो भी कर सकता है, दिखने में बहुत कुरूप है वो भी कर सकता है, उच्च जाति का है वो भी कर सकता है और शूद्र जाति का है वो भी कर सकता है। कोई बंधन नहीं है। तत्रार्पिता न नियमेन काला, कोई समय का बंधन भी नहीं है। अच्छा है सुबह करेंगे तो, लेकिन रात को भी कर सकते हैं, बिस्तर में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, खाने के पहले, खाने के बाद, स्नान करते समय भी भगवान का नाम ले सकते हैं। यहाँ तक कि टॉयलेट में भी ले सकते हैं भगवान का नाम। एक रामायण में कहानी आती है इसकी वजह से। तो एनीवे, तात्पर्य कहने का यह है कि ये नाम का जो जप करने की पद्धति है, ये ऐसे भगवान ने निर्माण की है कि आप कोई बहाना दे सकते नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू चैंट, बट यू कैनॉट से आई कैनॉट चैंट। मैं नहीं कर सकता ये आप नहीं बोल सकते हैं, मैं नहीं करना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू चैंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये कह सकते हैं। बट मैं नहीं कर सकता, आई कैनॉट डू इट, ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन डू इट, इट्स वेरी इजी, ऐसा भगवान ने इजी बना कर रखा है उसको। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ का सबसे बड़ा बेसिस है। शुरुआत सत्संग से होती है, बाद में किस किताबों को पढ़कर ज्ञान प्राप्ति से होती है, लेकिन करना क्या है उसके बाद में? व्हाट इज द एक्टिविटी, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज? भजन क्रिया। द भजन क्रिया इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भजन क्रिया यानी भगवान के नाम का जप करना। और चौथी चीज है डी। अभी हर एक जीव को क्या कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। सब लोगों को कष्ट करना पड़ता है, अमीर भी कष्ट कर रहा है, गरीब भी कष्ट कर रहा है, और लोग कहते हैं पेट को भरना है इसलिए कष्ट कर रहे हैं, है ना? तो हमारे जीवन में भोजन एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। कितना भी हम लोग बिजी रहेंगे तो हमको खाना पड़ता है। एक खाना और सोना, दो चीज हमको करनी ही पड़ती है। कितना भी कुछ भी हम लोग बिजी रहेंगे तो कम से कम 2 घंटा सोना ही पड़ता है, एक बार तो कम से कम खाना ही पड़ता है। लेकिन आइडियली 2 या 3 बार खाना चाहिए शरीर को संभालने के लिए। तो भी क्या खाएंगे वैसे हमारा जीवन बनेगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यू आर वॉट यू ईट, ऐसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। तो ये क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इससे आपकी मतें बनेगी। किसी डायटिशियन ने कहा था, यू टेल मी व्हाट यू ईट, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। आप मुझे बताइए आप क्या खाते हो, मैं बताऊंगा आप कैसे व्यक्ति हो। तो ये भोजन जो है ना, ये 3 गुण में होता है। ये 3 गुण होते हैं ना, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इंग्लिश में कहते हैं सत्व गुण यानी मोड ऑफ गुडनेस, तमोगुण यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस, और रजोगुण यानी मोड ऑफ पैशन। सो मोड ऑफ गुडनेस इज सत्वगुण, मोड ऑफ पैशन इज रजोगुण, एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस इज तमोगुण। सत्वगुण का मतलब है शांत स्वभाव, हेल्पफुल स्वभाव, जिसको क्रोध नहीं होता है, जो प्रेम करता है, मदद करता है, शांत स्वभाव का है, मिथ्याभाषी है, मितभाषी है, स्वीट टंग, लवेबल पर्सन, सत्व गुण है। रजोगुण यानी बहुत पैशन, बहुत पैसा चाहिए, बहुत डिग्री कमाना है, बहुत प्रोग्रेस करना है, बहुत प्रॉपर्टी लेना है, बहुत प्रमोशन होना चाहिए, बहुत अधिकार होना चाहिए, बहुत पावर होनी चाहिए। दिस इज पैशन, रजोगुण। दिस इज कॉल्ड वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी इसको कहती है। दुनियादारी रजोगुण पे चलती है। तमोगुण का मतलब है हिंसा करना, क्रोध करना, किसी को जख्मी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, क्रूरता से व्यवहार करना, क्रुएल्टी, वायलेंस, एंगर, ग्रीड इज ऑल तमोगुण। वैसे ये 3 गुण हमारे ऊपर हावी हैं। दुनिया में कभी हम शांत रहते हैं, कभी हम लोग बहुत पैशनेट हो जाते हैं, कभी हम किसी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, तो कभी तमोगुण, ये कभी तीनों का मिक्सचर, इससे हम प्रभावित रहते हैं हमेशा। एवरीबडी इज कंट्रोल्ड बाय दीज 3 गुणास।
और भोजन भी इस 3 गुण में होता है। जो भोजन बहुत सिंपल होता है, कम मसाले वाला होता है, कम चटपटा होता है, बहुत सादगी से बनाया जाता है उसको, फल फूल दूध सब्जियां शाकाहारी अन्न लेते हैं, उसको सत्वगुणी अन्न कहते हैं। जो सत्वगुणी अन्न है लेकिन बहुत चटपटा, बहुत तीखा, बहुत मीठा, बहुत स्पाइसी, हॉट नेचर होता है, उसको रजोगुणी अन्न कहते हैं। और जो अन्न सड़ा हुआ होता है या पुराना होता है, इसका मतलब प्यूट्रिफाइड, डिकम्पोज्ड, ओल्ड, मतलब क्या? मांस। मांस जो है वो किसी को मारने के बाद में बनता है। बिना किसी को मृत्यु का दंड दिए हुए मांस की निर्मित नहीं होती है। जब हम आम खाते हैं ना तो पेड़ को मारते नहीं है, आम लेते हैं, पेड़ जिंदा रहता है और हर साल आम देता है। लेकिन जब बकरी खाते हैं तो बकरी को मारना पड़ता है, मुर्गी खाते हैं तो मुर्गी को मार के उसको खा सकते हैं। तो मृत्यु के बाद ही मांस का निर्माण होता है। तो मांस निर्माण करने की प्रक्रिया जो है वो हत्या है। हत्या यानी क्रूरता। क्रूरता के बाद में जो अन्न बनता है उसको मांस कहते हैं। उसको तमोगुणी अन्न कहा गया है। तो भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर भगवान की अनुभूति प्राप्त करनी है, इफ यू वांट टू रियलाइज गॉड, if you want to realize yourself, if you want to have self realization, then you should eat only sattvic food which is favorable for spiritual progress. आत्मा के उन्नति के लिए जो अनुकूल अन्न है उसी को हमको ग्रहण करना चाहिए। सादगी वाला अन्न जो है उसको जब भगवान को अर्पण करते हैं तो उसका प्रसाद बनता है। सत्वगुणी अन्न भी आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता है। अगर कोई जेल में प्रिजनर है, उसको गोल्ड चेन लगाया है, किसी को सिल्वर चेन लगाया है और किसी को आयरन का चेन लगाया है, लेकिन हम भूल रहे हैं कि तीनों चेन ही है, तीनों हमको बांध रही है। ऑल थ्री आर चेन्स ओनली। यू कैन नॉट बी प्राउड ऑफ गोल्ड चेन। सी, आई एम बाउंड बाय गोल्ड चेन, आई एम सो फॉर्चुनेट, बट यू आर फॉरगेटिंग दैट यू आर इन चेन। डोंट फॉरगेट दैट यू आर चेन्ड, whether it is gold, silver or iron, you are bound. That is more important than the quality of chain. उसी तरह से सत्वगुण हमको मुक्त नहीं कर सकता है, सत्वगुण भी बांधने वाला है। गुण का एक अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुण? गुण यानी डोरी। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ गुण इज डोरी विच बाइंड्स। सत्व गुण, सत्व की डोरी बांध रही है। रजो गुण, रज गुण की डोरी बांध रही है। तमो गुण, तम की डोरी बांध रही है। अंधकार के अज्ञान की डोरी बांध रही है। तीनों डोरियां बांधती हैं। तो फिर मुक्त करने वाला क्या है? मुक्त करने वाला दिव्य गुण है, ट्रांसेंडेंटल मोड, मोड ऑफ ट्रांसेंडेंस। वो कैसा होता है? उसमें कोई बंधन नहीं होता है। उसी दिव्य गुण में भगवान निवास करते हैं। लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ नेचर। दिव्य गुण में भगवान निवास करते हैं और हम भी दिव्य गुण को बिलोंग करते हैं, लेकिन दिव्य गुण को छोड़कर अभी भौतिक दुनिया में आए हैं, इसलिए त्रिगुण से बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आहार की पद्धति बदलनी चाहिए। नॉन वेज छोड़ना चाहिए, चटपटा खाना बंद करना चाहिए और सादा खाना आरंभ करना चाहिए। और वो भी केवल सादा खाना नहीं, सादा खाना जो है वो बनाकर शाकाहारी अन्न भगवान को प्रेम से अर्पण करना चाहिए। यज्जहोसि यदस्नासि यज्जहो ददासि यत् यत् तपस्सित कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं जो भी आप खाओगे ना, मुझे अर्पण करके खाओ। यज्ञ शिष्टासना संतो भुंजते सर्व किल्बिषय। भगवान कहते हैं कि जो भी अन्न खाते हैं, शाकाहारी अन्न खाने पर भी वो पाप ही खाते हैं, और मेरे भक्त सब प्रकार के पापों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो केवल मुझे अर्पण किया हुआ प्रसाद ही खाते हैं। इसलिए मेरे भक्तगण पापों से बंधन से मुक्त रहते हैं। यज्ञ अशिष्ट यानी यज्ञ ही भगवान को जब हम अर्पण करते हैं तो अशिष्ट यानी यज्ञ का जो अशिष्ट यानी प्रसाद है जो हम ग्रहण करते हैं नैवेद्य करने के बाद में, भुंजते सर्व किल्बिषय, भुंजते यानी खाना, सर्व किल्बिषय यानी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत सिंपल है, भगवत गीता कोई डिफिकल्ट नहीं है। इतना सिंपल है कि जो शाकाहारी अन्न भी खाते हैं वो भी बंधे हुए हैं। फिर तमोगुण का और रजोगुण का क्या कहना? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्तः, सत्वगुण का अन्न खाने वाले जो है स्वर्गलोक की ओर जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा,
जो चटपटा बहुत दुनियादारी का खाना खाते हैं, वो वापस दुनिया में आते हैं, मध्य यानी भौतिक दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में, अर्थ पे, पृथ्वी पर। और अधो गच्छन्ति तामसः, अधो यानी नीचे, अधो गच्छन्ति यानी नीचे जाता है। तमोगुण में रहने वाले लोग, तमोगुणी अन्न खाने वाले लोग नरक में चले जाते हैं। अभी हमको कहाँ जाना है? हमको ना स्वर्ग में जाना है, ना वापस पृथ्वी पे आना है, ना नरक में जाना है। हमको तो वैकुंठ जाना है। वही कुंठ यानी कुंठ के परे, इस दुनिया को कुंठ कहा गया है, इसमें हम लोग कुंठित है, तकलीफ भोग रहे हैं। वही यानी परे, उसके बियॉन्ड, जहां पर जन्म मृत्यु नहीं है, जहां पर कोई बीमारी नहीं है, जहां पर कोई बीमार बुढ़ापा नहीं है, जहां आनंद ही आनंद है भगवान के साथ। तो वहां पर जाने के लिए क्या खाएं? वहां पर जाने के लिए शाकाहारी अन्न खाएं, लेकिन भगवान को अर्पण करके ही खाएं। बिना भगवान को अर्पण किए कुछ न खाएं। अगर बिस्किट भी बाहर से आता है तो उसका पैकेट खोलने के पहले उसको भगवान को अर्पण करके फिर खाना है। अभी आजकल के जमाने में तो बाहर से बहुत चीजें आती हैं, चूड़ा आता है, चकली आती है, फरसाण आता है, शंकरपाली आती है, बिस्किट आता है, नान खटाई आती है, क्या क्या आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शाकाहारी होना चाहिए, उसमें अंडा भी नहीं होना चाहिए। उसको भगवान में को प्रेम से अर्पण करना चाहिए। तुलसी का पत्र रखिए, एक घंटी बजाइए, भगवान को बोलिए, अगर मंत्र नहीं आता है भगवान को कहिए प्लीज एक्सेप्ट इट, मेरा ये भोग आप स्वीकार कीजिए। और भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से मुझे एक पत्ता, एक फूल, हाँ, पत्रम पुष्पम फलम, एक फल या तोयम थोड़ा सा जल अर्पण करते ना, मैं स्वीकार कर लेता हूँ, भगवान कहते हैं। बट यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर भक्ति से प्रेम से मुझे कोई अर्पण करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो कितना आसान हो गया, प्रसाद का निर्माण करना कितना आसान हो गया। बस अगर भगवान का फोटो भी नहीं है तो मन से भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं, एक थाली में रखकर, हाथ जोड़कर, हे भगवान मेरे भोग को स्वीकार करो, और उसको पा सकते हैं। जो व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है वो हर दिन धीरे धीरे अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा ये हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है। मेरे विचार से तो जैसे भगवान ने गीता में कहा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कैसा है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ? केवल सुखम नहीं है, सुसुखम है। सु यानी कि सु कब लगाते हैं? जब भी वो ज्यादा होता है तब उसको सु लगाते हैं। सुदुर्लभम, हाँ दुर्लभ है, लेकिन सुदुर्लभ यानी बहुत दुर्लभ है। तो वैसे सुसुखम है स्पिरिचुअल लाइफ। कैसा है? सुसुखम। जो स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है वो कभी भी आपको दुखी नहीं मिलेगा। वास्तव में आप उसको देखिए, अगर आपको देखना है कोई कोई स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है कि नहीं जी रहा है, इन रियलिटी वेदर ही इज रियली फॉलोइंग स्पिरिचुअल लाइफ और नॉट, तो यू हैव टू फाइंड हिम हैप्पी। अनहैप्पी पर्सन cannot be spiritual, and a spiritual person cannot be unhappy. If you are following spiritual life, you have to be happy, you have to be blissful. So सुसुखम कर्तुम अव्ययम, मतलब क्या? जो स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करता है उसका कभी व्यय नहीं होता है, कभी नुकसान नहीं होता है। देयर इज नो एक्सपेंस, ओनली गेन इज देयर। अक्षय खाते में जमा हो जाता है सब कुछ। ये दुनिया में जब हम कुछ जमा करते हैं ना तो खत्म हो जाता है वो। अगर मेरे जेब में 100 रुपया है, मैंने अगर आपको 20 रुपया दे दिया तो 80 बचते हैं, 20 गए। बट मेरे पास अगर स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो मैंने आपको दिया तो मेरा कम नहीं होता है, मेरा बढ़ जाता है। खर्च न छूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त जाए। क्या कहा था मीरा भाई ने? ये स्पिरिचुअल वेल्थ कैसा है? स्पिरिचुअल वेल्थ इज डिस्क्राइब्ड एज खर्च न छूटे, कभी खर्च नहीं होता है वो, कभी खर्च करने से कम नहीं होता है। और ये स्पिरिचुअल वेल्थ कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। मेरा नॉलेज आप चोरी नहीं कर सकते हो, मैं आपको दे सकता हूं, आप ले सकते हो, लेकिन मेरा नॉलेज आप चोरी नहीं कर सकते हो। तो खर्च न छूटे, चोर न लूटे। और कैसे? खर्च तो होता ही नहीं है, दिन दिन बढ़त जाए। आज इतना है तो कल उतना हो जाएगा, और कभी वो डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं, कभी नाश नहीं होगा उसका। अविनाशी, अविनाशी तो तद्विद्धिम। भगवान का नॉलेज जो है ना वो अविनाशी है, क्योंकि आत्मा स्वयं अविनाशी है, भगवान स्वयं अविनाशी है। तो अविनाशी के विषय में ज्ञान प्राप्त करने से वो ज्ञान भी अविनाशी हो जाता है। ये दुनिया का ज्ञान विनाशी है। कैसे? अब मैं डॉक्टर हूं, कुछ साल में बुढ़ा हो जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, कौन सी दवा किसको देनी थी, कौन से मरीज को कौन सी दवा देनी है,
कोरोना में नई दवा कौन सी आई है ये सब भूल जाऊंगा मैं कुछ साल के बाद। मेरा नाम भी भूल जाऊंगा। मेरी मदर मेरे घर पे है, 92 साल की है, खुद का नाम भी भूल चुकी है, उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। खुद को भी भूल जाते हैं, किसी बच्चे को पहचानते नहीं है, किसी बेटी को पहचानते नहीं है, किसी फैमिली मेंबर को पहचानते नहीं है, खुद को भी नहीं पहचानते। यानी यहाँ का जो ज्ञान है ना वो समाप्त होने वाला है एक दिन। यू विल ऑल फॉरगेट एवरीथिंग, यू नो, अल्जाइमर डिसीज हैज कम, डिमेंशिया हैज कम, एवरीबॉडी विल फॉरगेट एवरीथिंग। अभी खाना क्या खाया था याद नहीं आ रहा है, गोली लिया क्या मालूम नहीं, भूल गए। झगड़ा करते हैं वो ओल्ड आदमी लोग, मेरे को खाना नहीं खिलाया आपने आज, 1 घंटा के बाद बोलते हैं मुझे अब लंच खिलाया नहीं, याद ही नहीं आते उनको कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल लाइफ करने से क्या होता है, आप सारा भौतिक ज्ञान भूल जाएंगे, लेकिन भगवान के विषय में आप नहीं भूलेंगे कुछ भी। कितना भी आपको अल्जाइमर हो जाएगा ना, अल्जाइमर डिसीज, still you will not forget about God and about your spiritual life. So that is the most important thing we have to understand. Spiritual life means freedom from bondage. तो आज हमारा टॉपिक था कि बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, एबीसीडी। तो एबीसीडी ही बताया मैंने आपको आज, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक एबीसीडी नहीं करोगे आप तब तक आगे की बात करना बेकार है। जैसे 12th में क्या मैथमेटिक्स है और बीएससी में मैथमेटिक्स क्या है और पीएचडी में मैथमेटिक्स क्या है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को बोल के क्या फायदा है, उसको बताकर भी समझ में आने वाला नहीं है। He has to cross from first standard to second standard, then to 7th standard, then to 10th standard, then to 12th standard, then to graduation, then post graduation, and then PhD doctorate. तो वैसे ही जब तक हम लोग केवल सुनते ही रहेंगे और करेंगे कुछ नहीं, सत्संग में जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, for so many years in life we are hearing Bhagavad Gita, chanting Bhagavad Gita, but we are not practicing sadhana, we are not practicing the steps of spiritual life, ABCD. We are not taking satsang, we are not taking the chanting of the holy name, we are not taking prasadam, we are not reading spiritual scriptures, we are not worshipping the Lord, we are not visiting the holy places, we are not serving the devotees, serving the devotee and Vaishnavas. Then the knowledge becomes useless. Knowledge not in practice is a useless thing. आपको घड़ी रिपेयर करने का नॉलेज है, लेकिन आप कभी भी घड़ी रिपेयर नहीं करते, तो व्हाट इज द यूज ऑफ नॉलेज? आपको कार चलाना आता है, ड्राइविंग, लेकिन आप कभी कार चलाते ही नहीं, आपका ड्राइवर चलाता है, तो वन डे यू विल फॉरगेट ड्राइविंग। आपको बल्ब रिपेयर करना आता है, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन करने को आता है, लेकिन आप कभी भी करते नहीं है, बिजली वाले को बुलाते हैं, वो कर लेता है। तो नॉलेज which is not in practice is a useless thing. And when you practice your knowledge, what happens? That turns into realization, what we call as experience. Why we call medical practice? अभी 70 साल का हो गया तो बोलेंगे yes yes my practice is in Dadar, I practice in Dadar. तो we are still practicing. क्यों? क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अनुभव आएगा, उतना ज्यादा नॉलेज हमारा बढ़ेगा। नॉलेज विद एक्सपीरियंस इज वेरी वैल्यूएबल, नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस इज यूजलेस। हम लोग क्या सोचते हैं कि वो कैंसर सर्जन है ना, कितने साल का प्रैक्टिस किया है, बोले 20 years इज प्रैक्टिसिंग, ओके ओके देन आई कैन गो टू हिम, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, हाउ मेनी इयर्स इज प्रैक्टिसिंग, इज वेरी सीनियर वन, इज 25-year-old प्रैक्टिसिंग कैंसर सर्जन, सो आई कैन ऑपरेट फ्रॉम हिम। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज acquiring knowledge is important, but that knowledge has to be practiced, cannot be just stored in the books in the shelf, or the books cannot be remaining in the shelf. You have to read the books and follow what is given in the books. If you go to satsang, what you hear in satsang, you have to follow what is told in satsang, not simply go and oh goody goody work, today I have heard भागवत सप्ताह में सुन के आया, आज बड़ा अच्छा कथा बताया गुरुजी ने, बहुत अच्छा कथा बताया, लेकिन उन्होंने जो भी शिक्षा दिया वो मैंने फॉलो नहीं किया उसको। उन्होंने कहा था कि मांस छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, और केवल शाकाहारी अन्न भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाओ, और ये लो राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, नरसिम्हा का नाम लो, भगवान का नाम लो, ये सब बताया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें से। अगली बार दोबारा कथा में गया, दोबारा उन्होंने बताया ऐसे करो, वो भी मैंने कभी किया नहीं।
ऐसे जन्म भर कथा सुनते रहेंगे ना, तो मराठी में कहते हैं ना, पालत्या घड़ावर पानी, उल्टा मटका रखेंगे और उसमें हजारों लीटर पानी डालेंगे तो कुछ भी पानी मटके के अंदर नहीं घुसेगा, सब बह जाएगा। इसलिए पालत्या घड़ावर पाणी टाकून काय फायदा नाही, उल्टे मटके पर पानी डाल के कुछ फायदा नहीं होता है। लाभ तब होता है जब हम सुने हुए नॉलेज को फॉलो करते हैं। और मेरे आपको इतनी विनती है कि जब तक आप सत्संग में बताए हुए भगवान के नामों को नहीं जपते हैं, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भगवान का नाम क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो यानी हृदय, दर्पण यानी मिरर, वो हृदय का मिरर साफ कर देता है। और आप कौन हैं ये आपकी पहचान आपको करा देता है। और महादावाग्नि निर्वापणम यानी कि दुनिया का जो दावाग्नि है जिसमें हम जल रहे हैं, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक क्लेश को हम भोग रहे हैं, वो सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम जो है विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। क्या करता है भगवान का नाम? भगवान का नाम जो है ना, वो हमें पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। भगवान का नाम आनंदाम बुद्धिवर्धनम, जो आनंद है ना उसका सागर की वृद्धि करता है। भगवान का नाम आनंद के सागर को हम हमारे पास लेके आता है। और हर समय भगवान का नाम उच्चारण करने से आनंद के सागर में वृद्धि होती रहती है। द ओशन ऑफ ब्लिस गोज ऑन इंक्रीजिंग। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर कदम पे आनंद का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में नहीं होता है, केवल जवानी में होता है, और आदमियों को होता है, औरतों को नहीं होता है। जो जो आध्यात्मिक जीवन में भगवान का नाम का जप की प्रक्रिया फॉलो करेगा, वो प्रतिपदम आनंदाम बुद्धिवर्धनम का अनुभव करेगा, पूर्ण अमृत का आस्वादन करेगा। जिस आनंद के लिए हम सब लोग सदैव तड़पते रहते हैं, जो आनंद हमको चाहिए, जो हमारी जरूरत है, वो भगवान का नाम करने से प्रचुर मात्रा में हमको प्राप्त हो जाता है। सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये भगवान का जो संकीर्तन है, नाम संकीर्तन, ये परम विजयते है। ये ऑलवेज ग्लोरियस, ऑल विक्टोरियस, ऑल ग्लोरीज टू द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ये किसने नहीं बताया है? महाराष्ट्र के संतों ने बताया है, पंजाब के संतों ने बताया है, उत्तर प्रदेश के संतों ने बताया है, हाँ, दक्षिण भारतीय संतों ने बताया है, पुरंदर दास, तुकाराम और कबीर और गुरु गोविंद सिंह। आप बोलो, इधर गुजरात में नरसिंह मेहता। कहा, कौन से देश में आपको जाना है, किस राज्य में जाना है, हर संत ने कहा है द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज द ओनली सॉल्यूशन। तो जब ये शुरू करेंगे ना, तो अपने आप आपको अनुभूति होगी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, और भगवान मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूं, मैं खोया हुआ बालक हूं, मुझे भगवान से दोबारा मिलना है, प्रेम और भक्ति के साथ में उनके साथ यूनाइट होना है। यह अनुभूति आपको अंदर से होगी, ये प्रवचन से नहीं होगी, आपको अंदर से अनुभूति होगी जब प्रैक्टिस करेंगे आप। मैं डॉक्टर हो गया और मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो कोई बीमार ठीक होगा क्या? नहीं होगा। मैं डॉक्टर बन के अगर स्टील का इंडस्ट्री खोला मैंने और लाखों रुपए कमा रहा हूं मैं, लेकिन डॉक्टर का प्रैक्टिस नहीं किया, तो बीमार ठीक नहीं होगा कभी भी। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल नॉलेज हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, एंड द इजीएस्ट एंड द मोस्ट वंडरफुल एंड द मोस्ट सब्लाइम, श्रेष्ठ प्रैक्टिस इज टू चैंट होली नेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं अभी मेरी भाषण को यही विश्राम देता हूं, और आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, जिसको प्रश्न है वो अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। गुरुजी नमस्ते। यस, नमस्ते। माय नेम इज अमितेश प्रभु। वेयर आर यू? ये आई एम इन मुंबई। But okay, what is, where are you? Okay, fine. Yeah. Okay.
my question is, in this path of salvation and हाँ. spiritual growth, Yes. what is the role of human karma or divine karma? How does that fit in? ओके, उत्तर हिंदी में दूंगा. आपका प्रश्न है कि हाँ जी. हमारा कर्म और दिव्य कर्म का क्या संबंध है और हमारा आध्यात्मिक जीवन का क्या कनेक्शन है इसके साथ. भगवान के बिना हमारा जीवन केवल कर्मों के फलों पर आधारित है. इफ देयर इज नो गॉड, आवर लाइफ इज ओनली कर्मा एंड कर्म फल, ओनली द चेन ऑफ कर्मा एंड रिएक्शंस. लेकिन जब भगवान जीवन में बीच में आते हैं तो कर्मों की श्रृंखला टूटने लगती है. योर साइकिल ऑफ कर्मा एंड कर्म फल gets broken, and one day you get free from all the karmas, because God can release you from all the karmas. तो पहला एक्टिविटी है प्रसाद खाने से क्या होता है. प्रसाद खाने से कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज है. और डिवाइन कर्म का मतलब क्या है? जो भगवान की सेवा में किया जाता है उसको डिवाइन कर्म कहते हैं. दिव्य कर्म किसको कहते हैं? जो भगवान के लिए ही किया जाता है. जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए कर रहा हूं, मेरे पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं, या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं दूसरों के लिए कर रहा हूं करुणा के आधार पर, या मैं भगवान की सेवा के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूं. एक है स्वार्थ, दूसरा है परमार्थ और तीसरा है भगवत सेवा. कार्य एक ही है, पर कार्य का उद्देश्य क्या है वो आपका तय करता है कि फल क्या मिलेगा. अगर मेडिकल काम सेम काम कर रहे हैं, अर्जुन ने सेम बाण चलाए, लेकिन पहले खुद के लिए चलाने का प्लान था, बाद में भगवान के लिए चलाए तो मुक्त हो गया वो. डॉक्टरी अगर मैं खुद के लिए कर रहा हूं पैसे के लिए तो वो स्वार्थ हो गया, और जब मैं किसी गरीबों के लिए काम कर रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं, तो वो परमार्थ हो गया. लेकिन मैं भगवान के लिए भगवान के नाम से कर रहा हूं. माम अनुस्मर युद्ध च, जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा था कि मेरे लिए युद्ध करवाओ. आपके पत्नी के रिवेंज लेने के लिए, आपके ऊपर अन्याय हुआ था उसको बदला लेने के लिए युद्ध मत करो. आप धर्म के लिए युद्ध करो, आप मेरे लिए युद्ध करो. तो युद्ध तो वही करना है ना, बाण तो वही चलाना है, लेकिन किसके लिए चला रहे हैं? भगवान के लिए चला रहे हैं, उनकी खुशी के लिए, तो दिव्य कर्म हो गया वो. किसी के लिए कर रहे हैं तो परमार्थ हो गया, और खुद के लिए खुद को विजयी होना है और राजा बनना है तो फिर वो स्वार्थ हो गया. तो हर एक चीज के फल अलग अलग हैं. तो आपको डिवाइन कर्म करना है तो डिवाइन कर्म करने से आप इस दुनिया से ही मुक्त हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पर दुख भोगने के लिए. कोई ब्लड प्रेशर, कोई डायबिटीज, कोई पैरालिसिस, कोई हार्ट अटैक नहीं होगा किसी को. सबसे मुक्त हो जाएंगे, सब फल खत्म हो जाएंगे. यहाँ पर अकाउंट नील हो जाएगा कर्मों का. वी विल डिलीट ऑल द अकाउंट ओवर हियर टू गेट फ्री टू गो. जब तक हमारा अकाउंट डिलीट नहीं होता है तब तक हम लोग बार बार यहाँ पर आते हैं, फ्री नहीं हो सकते. तो भगवान का सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से, वो उसको कहते हैं दिव्य कर्म, वो करने से जीव मुक्त हो जाता है और भगवान के पास चला जाता है. ठीक है, ओके सर. और कोई प्रश्न किसी का? Yes. मैडम आपका प्रश्न है कुछ? Can I ask one? यस प्लीज आस्क. It is said, helping hands are holier than the praying lips. How do you connect that with leading a spiritual life? Helping hand are, I'm telling you very honestly, from the spiritual point of view, helping hand has to be in the name of God. Helping hand can be in the mood of becoming famous. Helping hand can be also to become proud that I am such a great helper. Helping hand should be in the name of God, on behalf of God. And honestly speaking, unless you fold your hands, what you said, helping hands are what? Holier than the praying lips. The praying lips makes your hand holy. Do you agree with me? If your lips are praying, if your hands are folded in front of God, then those hands are very helpful to others. You develop the mood, the consciousness to help others. So only helping hands are not holier than praying lips. Praying lips makes the hand holier. You understand what I'm saying? So Yes. please pray first and then help. Then your help will become divine. Otherwise, your health, as I said earlier, it will become only paramarth. It will become only samaj seva. Samaj seva
will amass punya, and the punya will take you to Swargaloka. And when the punya is over, you will be thrown back out of Swargaloka to again Prithviloka. Kshine punye martalyoke vishanti. You get my point? When you do helping hand, you amass lot of karma, lot of punya karma. With that punya karma, you take birth in Swargaloka to enjoy. But when your punya karma get exhausted, you are thrown out of Swargaloka again back to Prithviloka. So what is the use of Samaj Seva? Do Samaj Seva in the name of God. So your Samaj Seva will release you from the bondage of material world. So it's a famous saying, everybody likes to say, helping hands are holier than praying lips. Huh? That means what? What it means? Don't go to churches or temples or mosque to pray. Just help others. That will not free you from bondage. Please understand. It looks nice in the material world, but you will remain here only. You cannot get out of it. So you help first to get up in the morning and chant the holy name, and whole day you help others. What are we doing in Bhaktivedanta Hospital? All the doctors are chanting for 2 hours in the morning every day. And they go to the hospital and work whole day serving the corona patients and all the patients. So much charity is being done. Free operations are being done. But before that, we do chanting in the morning. We pray in the morning to the Lord for the mercy, for the strength. This is not true. Is this my strength with which I help others? No. The strength is given by God. The thought to serve others is given by whom? Is given by God. This body through which you are going to help others, these hands with which you help others, who has given these hands to you? God has given these hands. So you have to be grateful and you have to pray. And then with God's mercy and the strength of God, go and help others. Then those hands are very holy, I can say. Any other question? Yes, Gopal Bhattaji. Unmute. Unmute. He has not unmuted. आवाज नहीं आ रहा है आपका? अभी आ रहा है। Now हाँ, he is बोलो. स्वामी जी, भक्ति योग में चैप्टर 12 of भगवत गीता, I have read 2 slokas, 13 and 14. जैसे अद्वेष्टाम सर्वभूतानां मैत्री करुणैव च निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख क्षमे. उसका नेक्स्ट श्लोका is सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो. Is that right? So what is God telling? What is the question? Tell me. Question is, yes, he has also said santushtam satatam yogi, who is dear to him, dear to Krishna. संतुष्टम सततम योगी. Yes. ययात्मा दृढ़ निश्चय, उसने मेरे ऊपर दृढ़ निश्चय किया है. मेरी प्राप्ति करने के लिए. मेरी प्राप्ति करने के लिए दृढ़ निश्चय किया हुआ है. मैं अर्पिता मनो और बुद्धि, मैं अर्पण किया है मन और बुद्धि को. किसको? भगवान को. या मन और बुद्धि. ये मद भक्ता समय प्रिया, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है. Yeah, this is what he has said. So, therefore, I think that is a great message. I remember it, and I always जो भी काम करता हूँ, मैं उसको कृष्णार्पण करके खाता हूँ, कृष्णार्पण करके करता हूँ, कृष्ण को आरती करता हूँ, आरती लेता हूँ, फूल ये जो आप बोला ना, पत्रम फूलम पत्रम पुष्पम फलम तोयम. वो भी जो भी है, भी कभी कुछ तुलसी है तो तुलसी डालता हूँ, फूल है तो फूल डालता हूँ. आजकल बिल्कुल सही बात है. मिलता बहुत मुश्किल है साहब. बहुत देखो, फूल नहीं मिलेगा तो चलेगा, आपका दिल का फूल अर्पण करो. कोरोना में नहीं मिलता है फूल तो प्रॉब्लम नहीं है, दिल का फूल तो है ना आपके पास, दिल की भावनाओं का फूल अर्पण करो. भगवान क्या बोलते हैं? मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु. कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल से भगवान को प्रणाम करो, दिल से उनको अपना मानो, उनके लिए भगवान नाम पे लोगों की सेवा करो. कि all miseries are starting because we are refused association from him. We discontinue association. That is why we are having this problem. So my request to all of you is,
Just Yeah. every single day in lockdown or free, chant Yeah. the holy names. Yes. Chant the holy name of the Lord every single day. Please do not Yeah. waste your time. We जन्म shouldn't not- मेरो बातों में बीत गयो, कबहु न कृष्ण कयो. Huh? Whole life went in gossiping and talking and doing nonsense things, but I never chanted the holy name of the Lord. जन्म मेरा बातों में बीत गयो, मैंने कबहु न कृष्ण कयो. So what is important is to take up the holy name of the Lord. Mayyarpita, offer yourself to the holy name of the Lord. Chant the holy name of the Lord. So with these few words, should we end our today's session? One question is on my part. Who is that person? Krishna. Krishna Salya. Yes. Can you raise your hand? Yeah. Okay, very good. I want to highlight you, that's why. Yes, sir. Yeah, I met you. Yeah, we met earlier. Twice we met. What sound is coming? Unmute karo. You unmute. एक जगह Now पर- it will be. एक जगह पर दो ऑन मत करो, एक म्यूट. Correct. Yeah, that word. Yeah, I told you. बोलो. Yes. Now I want to just ask that when we go to ISKCON temple, they say chant it 108 times. Why 108 times? You said any time you can chant. Say you go to, you have bath, you chant. Stop that music first. Oh, बंद करो. तुम्हारा mute करो. Yeah, now it is clear. Now it is clear. Okay. So, Yeah. Sankhya. Why 108 times you have to chant? I'm answering. Yeah. Sankhya Purvaka Gana Nan Natibhi. For everything, there has to be some regulation. So, 108 is not a magic number. Right. Just a number. Huh? It can be 51 also. There is a mala of 27 also. There is a mala of 51 also available. What is important is not number. What is important is to chant. And chant as per Guru's order. If my Guru tells me chant for 16 times 108, I will do that. If he tells me chant 24 times 108, I will do that. It's like master is telling you, the student, do this. Doctor कैसा बोलता है? Teacher, cut the skin first. Then I will operate. Then you stitch again. जो बोलेगा वो करना पड़ेगा आपको. बाद में बोलेगा कि okay, now cut and also open yourself. तो धीरे धीरे आपको order देगा वो. So what we are supposed to do? Surrender to your master. Whatever he tells you, you do. Then you will learn. We don't keep questioning our master. ऐसा क्यों? मेरे को खाली काटने को क्यों दे रहे हैं? ऑपरेशन करने को क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, जो बोलेगा वो करो. धीरे सब कुछ करने देगा आपको. तो इस तरह से there is nothing hard and fast about 108. Please understand. It is just a matter of convenience. I can ask you, why are you wearing half sleeves? Why not full sleeves like me? It's a matter of convenience, right? Why are you wearing check shirt? Why don't you wear yellow shirt like myself? Array, the purpose is to cover yourself. The color is just convenience. Today yellow, tomorrow blue. वैसे purpose is to cover yourself. But now half shirt, full shirt, collarless, with collar, all those fashions have come. It's a matter of convenience. I can ask ladies, why are you wearing Punjabi dress? Why don't you wear sari? But sari or Punjabi dress is a matter of convenience. उस तरह से 108 is a matter of convenience to make it easy for you. 108 की माला बना दी है और उसमें भगवान का नाम जपना है. वो important है. Right. Okay, sir? Anybody else who has any question? See, between Gayatri mantra, Yes. Krishna said that among these mantra in chapter 10, he said that among the mantra I am Gayatri. Among the trees I am Ashwatha. Yes, correct. Ashwattham. This he said, I am among the Siddhas, I am so Kapil. Among this one and that I am. So what is the question? Question is that now Gayatri we should tell is more important or Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Sri Krishna, Sri Ram, Narsimha, Vamana, Govinda, Gopal.
These are the names of the Lord. Okay. Yeah. We become qualified to chant Gayatri only after we are sufficiently chanted the other names of the Lord. Okay. When are you supposed to be qualified to do PhD? When you are already MSc mathematics, you can do PhD mathematics. You cannot start doing immediately PhD mathematics. The people will tell you first do 10th, then 12th, then graduation, post-graduation, then do PhD. Gayatri Mantra is very powerful, but one has to be qualified to chant Gayatri Mantra. There are 9 qualities given in Bhagavad Gita of Brahmanas. Shamas, tapas, shaucham, shantim, arjamam, evacha. Yeah. There are 9 qualities given in Bhagavad Gita about Brahmanas. When you develop those qualities, then Brahmana can chant Gayatri and get the full benefit. Otherwise, instead of 1,000 rupees, you will get only 1 rupee. It is not intelligence. So what you are saying is right. What Krishna is saying in Bhagavad Gita is perfectly right. But everything requires qualification. Your 1-year-old child cannot go and sit in the company as a managing director. Although he is the son of the managing director, he is the next akin to become MD of the company. But when he is 1 year old, he cannot occupy the seat. He has to get qualified for that. At right time, he will be qualified and father will be giving his seat to his son as MD of the company. Is that right or not? Tell me. Yeah, that is correct. But now, see, now I am 79 years. Next year, next October, I will be 80. Okay. So, because of this fact, I want to chant Gayatri. So you chant Gayatri, no problem. You are already GSB Brahmana and you have done Munja, Upanayana Vidya, already has been done for you. You can chant. Yes. But don't chant only that. Chant Gopal, Govinda, Ram, Krishna also along with that. To make your Gayatri mantra more effective, more powerful, more beneficial, please chant the holy name. Also, yeah. It's like you have a pure cow's milk. You can't take in hand. You have to have a pot, na? Yes. You need to carry a pot. Bigger the pot, more the milk. That pot is the holy name of the Lord, and the milk is Gayatri mantra. First, acquire the pot. Yeah. Then get the milk. Yeah. Correct. Just you can't carry the milk in the hand. So you don't worry. You already Brahmin Dikshit, Upanayana Dikshit person from Swami of Kashi Math. So don't worry. You can chant, but do not forget to chant Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Hare Krishna, Hare Ram. You Hare can Krishna, Hare Krishna, Hare Maha Mantra. Maha Mantra. Yes. Thank Everything you, has its own place, own importance, and own qualifications. Everybody cannot do everything. Thank you. I have another lecture at 6 o'clock, so I have to leave now. Yeah. Before that, all Pravachan lovers, I like to thank Guruji for giving an excellent Pravachan on ABCD of Sanatana Dharma or leading a spiritual life, which most of us had forgotten. And hope whenever we approach you, you will be making yourself free to deliver such very educative speeches. Anytime. Yeah. And at the same time, I am very happy to note that against our expectation of only 15 members, I am finding 24. And that is also an encouraging sign. 26. And 26, yes. So now it is 26. And also I note that people from Kota, Noida, Bangalore have joined. That's a very good sign. And it shows that there is some interest in the spiritual speeches or pravachans. And I request you, but pravachan lovers, to come with any suggestions, what you can make so that we can make this type of pravachans more meaningful. Thank you all. And as one more thing, as in the olden days, when a guru finishes his training to his disciples, it is a customary to offer Guru Dakshina. But here, Guru Dakshina is optional. And from our
Siddhivinayak Bhajan group, we will be sending the Guru Kanika to Guruji, and whoever is willing to do the Guru Dakshina, he is quite welcome. So, can we conclude this with a small arti, please? Or shall we say chant one or two Mantras. mantras? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Hare Krishna. Here we conclude and say, let us Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you all. Thank you. Thank you, buddy.